رحیم یار خان شہر کے جنوب میں تاریخی قصبہ منٹھار کی جانب رخت سفر باندھیں تو شہر سے 18 کلومیٹر کی مسافت پر یہ ہے علاقے کا مشہور گاؤں چک نمبر 125 پی۔ ہزاروں نفوس پر مشتمل اس گاؤں کی بڑی وجہ شہرت ہے یہاں کا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول۔ وطن عزیز پاکستان سے عمر میں کوئی 10 برس بڑے اس اسکول کی بنیاد 1938 میں گاؤں آباد ہونے کے کوئی 5 برس بعد رکھی گئی۔ کم و بیش 9 اشروں پر محیط اس اسکول کا تعلیمی سفر انتہائی دلچسپ ہے جس سے عزم و ہمت کے کئی اچھوتے سبق بھی پھوٹتے ہیں۔ اسکول کے بانی ہیڈ ماسٹر کا اعزاز چودھری شیر محمد مرحوم کو ملا۔ انہوں نے اول پوری تندہی، محنت اور لگن کے ساتھ اس ننھے پودے کی خوب آبیاری کی۔ اسکول کی تعداد خاطر خواہ حد تک بڑھی تو ایک اشرے بعد محکمہ تعلیم نے اسکول کو پرائمری سے مڈل کا درجہ دے دیا۔ 8ویں جماعت کے بعد طلباء کے لیے مزید تعلیم جاری رکھنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ غریب اور سفید پوش طلباء کی اکثریت ہائی اسکول تک رسائی حاصل کرنے کے لیے طویل مسافت طے کر کے شہر آنے سے قاصر تھی۔ والدین اپنے بچوں کے لیے تعلیم کی تڑپ رکھتے تھے مگر علاقے میں ہائی اسکول نہ ہونے سے ان کے سپنے ادھورے رہنے لگے۔ مسئلہ کی سنگینی دیکھ کر گاؤں کے بڑوں نے سر جوڑے۔ اسکول کونسل کے صدر حکیم عبدالستار صمدانی، چودھری عبداللہ نمبردار، حاجی محمد شفیع، سیٹھ محمد علی، سیٹھ غلام حسین اور ان کے معاونین نے مڈل اسکول میں نجی طور پر 9ویں اور 10ویں کلاسز شروع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اسکول انتظامیہ نے ہائی کلاسز کے انعقاد کی حامی تو بھر لی مگر اب مسئلہ درپیش تھا ان کلاسز کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت رکھے گئے اساتذہ کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے بندوبست کا۔ ارادہ مصمم اور جذبہ جنوں ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ علاقہ بھر کے خاص و عام نے دیکھا کہ اسکول کونسل کے اراکین نے طلباء کو ساتھ لے کر گاؤں کریا گشت کر کے فنڈز جمع کرنے کی کامیاب مہم چلائی۔ جھولیاں پھیلا کر گھر گھر سے چندہ اکٹھا کیا جاتا۔ لوگ 10 پیسے، 25 پیسے، 50 پیسے، 1 روپیہ اور کچھ سخی دل 5 روپے تک چندہ دے کر علم کی شمع روشن کرنے کے اس عظیم مشن میں اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ 1959 میں گاؤں کے مڈل اسکول کی بلڈنگ میں ہی پرائیویٹ طور پر 9ویں اور 10ویں کلاسز کا اجرا ہوا۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سلسلہ اگلے 14 برس تواتر کے ساتھ جاری و ساری رہا۔ 1974 میں ایک نئی اور مبارک صبح طلوع ہوئی جب اہل علاقہ کے پرزور مطالبے پر اسکول کو مڈل سے ہائی کا درجہ دے دیا گیا۔ 1960 میں اسے مڈل سٹینڈرڈ جبکہ 1989 میں میٹرک کے امتحانی سینٹر کا درجہ ملا جو آج بھی قائم ہے۔ 4 ایکڑ اراضی پر مشتمل اسکول میں عمارتی ڈھانچہ تقریباً 2 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اسکول کی موجودہ بلڈنگ 80 کی دہائی میں تعمیر ہوئی۔ ہائی اسکول کا درجہ ملنے کے بعد گزشتہ نصف صدی اسکول کی زینہ بزینہ کامیابیوں و کامرانیوں سے عبارت ہے۔ جناب خورشید احمد خان نے 15 مئی 1974 کو ہائی اسکول کے پہلے ہیڈ ماسٹر بن کر ادارہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ ان کے بعد چودھری جان محمد، سید عبد المنان شاہ، بشیر احمد بزدار، چودھری بشیر احمد، سلطان احمد، میاں عبد الکریم، محمد رمضان، سرمد حسین، عبد الشکور، چودھری اقبال احمد، غلام رسول خان، تاج محمد اسلم، حاتم بختیار، عبد الرشید، حق نواز، چودھری اصغر علی، جاوید اقبال، جام رب نواز،
امتیاز احمد اور موجودہ ہیڈ ماسٹر سلطان الحق نے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے اسکول کو ترقی کی شاہراہ پر رواں دواں رکھا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹرز اور اساتذہ اکرام نے سخت محنت، لگن اور دیانتداری کے ساتھ علاقہ بھر میں علم کی جوت جگائی۔ مسلسل محنت اور جدوجہد سے یہ اسکول ضلع کے ایک بڑے اور معیاری علمی مرکز کی صورت اختیار کر گیا۔ ڈوری لے کر اس کو ایک سٹینڈ سے باندھ دینا ہے اور ڈوری کی لمبائی کو ہم نے ناپ لینا ہے کہ کتنی ہونی چاہیے۔ پہلے سے موجود اسکرین میں جو بھی ڈاٹا ہوتا ہے طلباء کی تعلیم و تربیت انتہائی احسن طریق پر ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں اسکول سے ایسے باشعور، صاحب علم اور باکمال لوگ باہر نکلے جو ملک و ملت کو عروج و کمال کی طرف لے کر گئے۔ کتنے ہی ملٹری و سول افسران، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، ماہرین تعلیم، ماہرین زراعت اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہ دماغ ہیں جو اس عظیم درسگاہ اور یہاں کے اساتذہ کے تراشے ہوئے نگینے ہیں۔ عرصہ دراز سے علاقہ میں سماجی خدمات سر انجام دینے والی فلاحی تنظیم سمدانی فاؤنڈیشن کی جانب سے اسکول کے نامور اور عالی مرتبت اولڈ اسٹوڈنٹس کے اعزاز میں تقریب پذیرائی منعقد کی گئی۔ ہیڈ ماسٹر جناب سلطان الحق، اساتذہ اکرام اور تقریب کی میزبان سمدانی فاؤنڈیشن کے عہدیداروں نے تقریب میں آمد پر مہمان اولڈ اسٹوڈنٹس کو مالیں پہنا کر اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسکول میں عرصہ 30 سال درجہ چہارم کی ڈیوٹی دینے والے بابا جان محمد بھی مہمان شخصیات میں شامل تھے۔ اسکول اسمبلی کے لیے انہوں نے 8:30 پر گھنٹیاں بجائیں تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام جناب جان محمد ہے کہ میں اس اسکول میں جو ملازمت کر رہا ہے 30 سال کی ہے جناب کینٹین اپنے۔ وہ یہ ڈیوٹی مسلسل 3 اشرے بخوبی سر انجام دیتے رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں۔ تلاوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملی و قومی ترانوں نے اولڈ اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں اپنے دور کی اسکول اسمبلی کے مناظر کی یاد تازہ کر دی۔ اسمبلی سیشن مکمل ہونے پر اسکول کا مرکزی گراؤنڈ بچوں سے خالی ہوا تو درختوں کے سائے تلے مہمان شخصیات کے ساتھ گفت و شنید کے لیے چوپال کی شکل میں نشستیں سجائی گئیں۔ مہمان اولڈ اسٹوڈنٹس کے دمکتے چہرے بتا رہے تھے کہ اپنی مادر علمی میں مہمان بن کر آنے کا احساس ان کے لیے بہت سہانا اور محسور کن ہے۔ مہمان اولڈ اسٹوڈنٹس نے زمانہ طالب علمی کی یادیں کھنگالتے ہوئے اپنے احساسات، جذبات اور خیالات کا اظہار کیا۔ میرا نام کرنل ڈاکٹر منظور احمد منظور ہے۔
मैं इस स्कूल में 1966 में 6th क्लास में आया था और मैट्रिक यहाँ से मैंने 1971 में किया। यहाँ का टेन्योर मेरा बहुत अच्छा रहा, सुनहरी दौर है वो। मैं क्लास का मॉनिटर था, थ्रू आउट रहा हूँ। यहाँ के असातिज़ा का मेन रोल है मेरी कामयाबी में। उनमें सरफ़हरिस्त है मास्टर शेर मोहम्मद साहब, हेड मास्टर थे। उनकी खिदमात को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने जो हमें पढ़ाया आज तक हमें याद है और उसी बेस पर हम चल रहे हैं। उसके बाद मास्टर नूर अहमद थे, उसके बाद मास्टर रफ़ीक राजा साहब थे, उसके बाद मास्टर रमज़ान साहब मैट्रिक में, उनका जिक्र मैं करूँगा। यहाँ के जो उस्ताद थे वो डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे। उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया कि इवन हमारी कोचिंग क्लासेस स्कूल टाइम के बाद में होती थी। हमारे उस ज़माने में जो टीचिंग थी वो जो थी उसका स्टैंडर्ड था। अभी आजकल जो मुकाबला है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में, वो है अच्छे रिज़ल्ट का। वो कोशिश करते हैं कि हम नंबर ज़्यादा दें और 100% रिज़ल्ट लेके आएँ। उस ज़माने में ये नहीं होता था। उस ज़माने में स्टैंडर्ड था पढ़ाई का कि ये लेवल हमने अचीव करना है। अभी जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा है बाय हुक एंड क्रोक। इसमें स्टैंडर्ड डाउन हो गया हुआ है, क्वालिटी डाउन हो गई है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। अभी 100% रिज़ल्ट होता है, लेकिन जो उनका स्टैंडर्ड है वो नहीं है जो पहले होता था। हमारे ज़माने में रिज़ल्ट जो आता था वो 60 या 70% या 50% होता था एग्ज़ाम का, बोर्ड का। आजकल 100% होता है। दिस इज़ द रीज़न कि प्राइवेट अभी ज़्यादा हो गए हैं और प्राइवेट को मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, जो अदारे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो कम ना हो। रिज़ल्ट अच्छा है, मेयार जो भी हो। आजकल ये है। दूसरा ये कि अभी जो उस्ताद इकराम हैं वो स्टूडेंट्स पर पढ़ाई पर जोर देने के बजाय अपनी इनकम पर जोर देते हैं, ट्यूशन पर जोर देते हैं, ताकि बच्चों को, हमारे पास बच्चे आएँ, ट्यूशन पढ़ें। स्कूल में अगर नहीं पढ़ाते तो इनको चाहिए कि वो हमारे पास ट्यूशन सेंटर में आए। इस वजह से अभी जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच गलत है। उस ज़माने की अप्रोच ये थी कि बेलौस खिदमत, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। जो हमारे असातिज़ा इकराम थे वो बेलौस थे, उनको कोई लालच नहीं था। आजकल जो है वो लालच शामिल हो गया है, लोग मनी माइंडेड हो गए हैं और ट्यूशन पर जोर ज़्यादा देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, चक 123 जिसको टिब्बे वाली तई भी कहते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तो पहली क्लास में ही इधर मैंने दाखिला लिया। हम 2 भाई थे, एक ही क्लास में हम शुरू से पढ़ते थे। इधर मैं आया तो पहले दिन ही मास्टर नज़ीर साहब थे जिनकी क्लास में पहली क्लास में दाखिल हुए। तो उन्होंने चंद एक चीज़ें मुझसे सुनी और मुझे पहले दिन ही उन्होंने कहा जी आप आज से मॉनिटर हैं। उन्हीं दिनों में शेर मोहम्मद साहब थे हेड मास्टर यहाँ पर। वो कभी कभी क्लास में आते थे, कभी पहाड़े सोने के लिए, कभी किसी क्लास में चले जाते थे, उनकी आदत थी। कभी किसी क्लास में किसी से कलमा सुन लिया, किसी से पहाड़े सुन लिए, इस तरह का। चौथी क्लास तक तो नज़ीर साहब हमें पढ़ाते रहे और बड़े अच्छे, बहुत शफीक उस्ताद थे। हमें वो उस वक्त ये कलम दुआत का रवाज था, तो हमें खुद ना वो बना के कलम दिया करते थे, कलम बना के देते थे कि ये मतलब इसके साथ लिखो। तो उनकी अपनी भी बड़ी अच्छी थी हैंड राइटिंग। उसके बाद जब हम 5वीं क्लास में गए तो फिर मास्टर रशीद साहब थे, वो 36 चक के रहने वाले थे। 5वीं क्लास में उन्होंने पढ़ाया और फिर आगे 6ठी 7वीं 8वीं में हमारे टीचर थे मियाँ फतेह साहब थे, सुल्तान साहब थे, रफ़ीक राजा साहब थे, नूर साहब थे। ख्याल उस वक्त बहुत ही अच्छा माहौल था स्कूल का। हमारे स्कूल 125 जो है ना, यहाँ पर फुटबॉल जो है ना वो पहले नंबर पे था। मतलब एक दौर तो ऐसा आया था कि हर कोई कहता है यार 25 तक का फुटबॉल जो है बहुत मतलब कि है। जिस तरह
ये 58 चक होता था। वहाँ पर कबड्डी की मतलब टीम बड़ी होती थी। ठीक है। हमारे इधर फुटबॉल और वॉलीबॉल जो है बहुत अच्छा होता था। मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। मैं इस स्कूल में 1970 में 4-6 महीने के लिए 9th क्लास में पढ़ा हूँ। जितने यहाँ टीचर पढ़ाते थे वो बड़े शफीक और एक क्वालिटी एजुकेशन देने में वो हर वक्त मसरूफ़ थे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी मुआशरती और हमारे इखलाकी जो तरबियत है उसमें भी उन्होंने अपने किरदार से, अपने अमल से जो अपने स्टूडेंट्स को मुतासर किया और उससे सिखाया। ये वो मिट्टी है जिससे करीब से गुजरते हुए सच्ची बात यह है कि इसमें से खुशबू आती है। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। पहली से लेकर 10वीं तक हम 5 भाई हैं, 5 के 5 यहाँ पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्स्ट आते थे, मैं सेकंड आता था या थर्ड आता था। हमारी जो नई जनरेशन है उसके बारे में मेरा ये है कि उसको अपनी जो तालीम है, जो एक्टिविटीज़ है वो बामकसद होनी चाहिए। लेकिन आजकल जो मुझे कि मैं 22 साल से मैं ये इंटर के पेपर जो है वो चेक कर रहा हूँ, तो यकीन जाने मैं बिल्कुल 100% सही कह रहा हूँ कि मेयार जो है वहाँ देखते हैं तो गिरता जा रहा है। इतना मैंने पहली दफ़ा अभी सप्ली के पेपर आए थे, मैंने देखा दूसरे बोर्डों के पेपर थे, यानी वो जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेपर थे, और हैरान होता हूँ कि यहाँ 100 पेपर का बंडल होता है, वहाँ 4-5 से ज़्यादा, यानी 4-5% से ज़्यादा लड़के पास नहीं हुए। तो अब ये जो दौर है सोशल मीडिया का, ये सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं। तो यंग जनरेशन जो है इसको तवज्जो देनी चाहिए अपनी पढ़ाई की तरफ, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ। मैं 137 तक में जो 125 के करीब ही है यहीं पैदा हुआ हूँ, और पहली जमात में 125 में दाखिला लिया था। उस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम मास्टर अब्दुल सत्तार साहब 137 से जिनका तल्लक था वो पढ़ाते थे। फिर दूसरी से 5वीं तक मास्टर नज़ीर अहमद साहब जिनका तल्लक 139 तक से था, और वो पुराने हेड मास्टर मेहरदीन के बेटे थे, उन्होंने पढ़ाया। फिर 6वीं से लेकर 8वीं तक मुस्तफ़ा साहब पढ़ाते रहे, जिनमें नुमाया रोल मास्टर शेर मोहम्मद साहब का था, वो यहाँ हेड मास्टर भी थे, और मास्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब राजा साहब, तो उनकी रियाजी का पढ़ाने का अपना अंदाज़ था, जो बाद में पता चला कि वो क्या है। हमारी अपनी खिदमत जो हैं इनका क्रेडिट उनको भी जाता है जिन्होंने ये शमा जलाई। तो आज यहाँ हम उनकी यादों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये जो हमारी बरादरी है ये इल्मी बरादरी है, और इसको हम वो पैदाइशी बरादरी पर ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये इल्मी बरादरी जो है इसका मकाम कहीं ऊंचा है उस बरादरी से जो हमारी पैदाइशी बरादरी है। मेरा नाम मलिक उज़ैर है। मैं यहाँ 1995 से लेकर 2002 तक मैंने यहाँ से तईलीम हासिल की है, और माशाल्लाह सभी टीचर बहुत अच्छे थे। लेकिन जो मेरे जो फेवरेट टीचर हैं वो उसमें मास्टर मोहम्मद अली साहब और हेड मास्टर इकबाल साहब थे। मोहम्मद यूनुस सिद्दीक मेरा नाम है, और मैं इसी स्कूल में क्लास 1 से 10 तक पढ़ा हूँ, और इसी गांव 125 का रहने वाला हूँ। इस स्कूल के साथ हमारा बड़ा कल्बी लगाव है। मेरे वालिद मोहतरम 1959 में जब ये प्राइवेट स्कूल बना था तो उस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। उस दौर में सबसे एक यूनिक और मुनफरद एजाज़ ये होता था कि बोर्ड की पोजीशन हर दफ़ा इसी स्कूल की हुआ करती थी, कभी फर्स्ट सेकंड, और यहाँ से बड़े बेहतरीन स्टार निकले, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स और इसी तरह के बहुत शाइनिंग स्टूडेंट। उस वक्त पूरी दुनिया में वो अपनी खिदमत
पेश कर रहे हैं। इसी स्कूल का मैं काउंसिल मेंबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, जब कोई स्कूल का मसला हो, किसी हवाले से डीसी साहब से मिलना हो, एजुकेशन की हायर अथॉरिटी से मिलना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो स्टाफ जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं आता हूँ और इस हवाले से पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो मामला सॉल्व कर सकें। मेहमान ओल्ड स्टूडेंट्स का कहना था कि उनके असातिज़ा अपने इल्म और तजर्बात में यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। स्कूल हेडमास्टर जनाब सुल्तानुल हक ने बताया कि वो 3 फीमेल टीचर्स समेत स्टाफ के कुल 18 असातिज़ा के साथ मिलकर स्कूल का तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से इंटरनेशनल अवार्ड 2019-23 इस बात की गमाज़ी करता है कि उनका इदारा शानदार तालीमी रिवायात पर कारबंद और बेहतरीन तालीमी नताइज का हामिल है। स्कूल में तलबा को साइंस व आर्ट्स दोनों फैकल्टीज़ में तालीम दी जा रही है। हाई क्लासेस के लिए स्कूल साइंस लेबॉर्ट्री से आरास्ता है। क्लासेस में प्रोजेक्टर्स, LEDs और LCDs का इस्तेमाल बता रहा है कि हमारे सरकारी स्कूल नई नस्ल को जदीद खतूत पर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। स्कूल की लाइब्रेरी में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून को यकजा किया गया है। बाकायदा इंदराज के बाद तलबा को लाइब्रेरी की कुतुब चल्लत भी की जाती हैं। स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियों और खेलों का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी के साथ साथ रस्साकशी, बोरी रेस, गुल्ली डंडा जैसे रिवायती खेल स्कूल के तलबा की दिलचस्पी और जिस्मानी सेहत व तंदुरुस्ती का बायस हैं। जिस तरह आज हमारे देहातों में हल चलाने वाली बैल जोड़ियाँ, कुओं से पानी निकालने वाले रहट, तरखान के हाथों के बने औजार, घरों में मिट्टी, पीतल और तांबे के बर्तन नापैद और मतरूक हो चुके हैं, इसी तरह गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चक 125P में कलम दवात, तख्ती, स्लेट और टाट जैसी अशिया अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं।